Today, in this class, we will study compensation management. Okay? Salary structure compensation management का part है. That is why it is appropriate to first understand what is compensation management और compensation management का क्या use होता है, क्या implication होता है, both in terms of employees and employers. कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट को बनाते समय, कॉम्पेंसेशन का पैकेज डिजाइन करते समय कोई ऑर्गेनाइजेशन किन किन बातों को ध्यान में रखती है, वो सारी चीजें हम पहले कॉम्पेंसेशन पैकेज में पढ़ेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू स्टडी वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी स्ट्रक्चर. ओके, नाउ कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? कोई ऑर्गेनाइजेशन जब आपको सैलरी देती है तो वो सिर्फ सैलरी नहीं होती, वो एक पूरा का पूरा कॉम्पेंसेशन है जिसके पैकेज को डिजाइन किया गया है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू. ओके, द कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट विल नॉट ओनली इंक्लूड द financial part of your package, which is the salary, but will also include the benefits part, okay, and reward part and recognition part of the organization, of what the organization spends on you. इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पेंसेशन यानी कि जो वो बेनिफिट्स देती है आपको इन ल्यू ऑफ यानी इन रिटर्न ऑफ द सर्विसेज दैट you render to the organization is known as compensation management. So write down. Write down. Compensation can be defined as various direct and indirect ways of paying to the employees. Various direct. हाँ बोलो. Ways, W-A-G. हाँ, W-A-Y-S, ways, तरीका. Compensation can be defined as various direct and indirect ways of paying to the employees. Ma'am, after wage. Wage नहीं है. This is ways, तरीका. Compensation is defined as various direct and indirect ways of paying to the organization, of paying to the employees, for the services rendered by them to the organization. For the services rendered by them to the organization. It is important both at national and international level. It is important both at national and international level. It is a major HR tool
It is a major HR tool to manage their employees. It's a process of getting their money worth. It is a process of getting their money worth and encourage and hold skilled employees. And encourage and hold skilled employees. Employees. It is a major way compensation to its general goals. It is a major way to link compensation to its general goals and strategies. Compensation to its general goals and strategies. मैम प्लीज एक्सप्लेन आफ्टर मेजर वेज के बाद क्या होगा? बोलो, फिर से बोलो प्रिया. मैम encourage and co-skill employee, which is the major way. It's a process to get its money worth and encourage and hold skilled employees. ठीक है, यहाँ तक लिखी हो? Yes मैम, लिखे मैम. Next लिखो. It is a major way to link L-I-N-K, link. It is a major way to link compensation. It is a major way to link compensation with its general goals and strategies. With its general goals and strategies. With HR strategy. With it's a HR strategy. Done? Okay, now right. It is an organized practice which involves balancing the work-employee relations. It is organized practice Which involves balancing the work-employee relation by providing various monetary and non-monetary benefits to the employees. By providing various monetary and non-monetary benefits to the employees. Done? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कॉम्पेंसेशन पैकेज का डिजाइनिंग, कॉम्पेंसेशन देना किसी ऑर्गेनाइजेशन का
सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होता है कि आपको जाना है इसलिए आपको सैलरी चाहिए, यू वांट टू वर्क सो यू आर इंटरेस्टेड इन सैलरी। कॉम्पेंसेशन पैकेज किसी ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा रहे, कॉम्पिटिटिव रहे, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। एंड दिस हैज अ मेजर इम्पैक्ट, अ गुड कॉम्पेंसेशन हैज अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। आपने एक पॉइंट लिखी है कि it is a major HR tool. Yes, it is a major HR tool. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को किसी का कॉम्पेंसेशन डिफाइन करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि इसका वेरियस इम्प्लीकेशंस होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स जब हम बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है कॉम्पेंसेशन पैकेज का, तब हम ज्यादा अच्छे से इसको क्लियर करके बताएंगे। अभी आप समझिए कि एन एम्प्लॉय he goes by what the organization pays rather than what the organization says, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसा पे करती है, एम्प्लॉइज उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनको पे कैसा करती है रादर देन कि वो कहती क्या है। So it's a famous quote which says that employees go by what the organization pays rather than what they say. Okay, now write down importance of compensation management. मैम इसका थर्ड पॉइंट समझ में नहीं आया है। थर्ड पॉइंट क्या है, बोलो। It is a process of getting their money worth and encourage and hold skilled employees. मनी वर्थ मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन तुमको पैसा दे रही है तो वो चाहेगी भी ना कि तुम काम उसके हिसाब से करो, उसके हिसाब से यानी उस पोस्ट के हिसाब से वो पैसा देती है, और तुमको उस पोस्ट के हिसाब से ही स्किल शो करना होगा, तो उसका मनी वर्थ हुआ कि नहीं, समझ में आई बात, समझ आई बात। Yes, ma'am. Say for example, for a system engineer, an organization is paying 30,000 rupees. So for this 30,000 rupees, they would want that you have all the skills, you have all the requisites to meet for getting the worth of 30,000 for the organization. और क्या है, and encourage and hold skilled employees. Obvious बात है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पेंसेशन पैकेज अच्छा होगा तो वो एम्प्लॉइज को होल्ड करने में ज्यादा बेनिफिशियल होगा और लोग विलिंग होंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो रुके। अंडरस्टैंड? नाउ राइट डाउन इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट। Importance of compensation management. Positive control on the competence of the employees. Positive control on the competence of the employees. Next. On the ma'am. On the employees. Positive control on the competence of the employees. Next. It minimizes labor turnover. It minimizes labor turnover. Next. It motivates employees. It motivates employees. Next. It maintains good industrial relations.
It maintains It maintains good industrial relations. It leads to higher employee satisfaction. It leads to higher employee satisfaction. Okay, now I'll explain the points. See, it has positive control on the competence of employees. इसका क्या मतलब है? If the organization is paying good salary, if it is a competitive salary, then obviously you will be willing more to work for the employer. You will be willing more to give your skills to the enhancement of your skills for the organization. You will be willing more to work hard for the organization, right? अच्छा compensation package अगर दिया जाता है, डिजाइन किया जाता है, which is satisfactory and a good compensation package, वो एक पॉजिटिव कंट्रोल की तरह काम करता है किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर. सेकेंड, इट मिनिमाइजेस लेबर टर्नओवर. लेबर टर्नओवर का क्या मतलब होता है? यस, और बताइए यहाँ से. Very good. What is labor turnover? Abhijit just answered the question. You all answer. क्या होता है labor turnover? Organizations. मैम हाँ बोलो. लेबर टर्नओवर वो होता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर छोड़ के गए या लेबर आए, Yes. उसको ही लेबर टर्नओवर. Organized people come and people get themselves trained, they learn skills, they work for some time and then they leave the organization. Right? This is known as labor turnover. This labor turnover is a major problem which is there with the HR these days. किसी भी HR को, HR मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इस बात से कि people are leaving their organizations very frequently. कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहां ये ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि आईटी इंडस्ट्री. वहां पर लोगों के छोड़ने की या स्विच करने की टेंडेंसी बाकी ऑर्गेनाइजेशन से, बाकी इंडस्ट्री से ज्यादा होती है. इसीलिए वहां के एचआर को कॉम्पेंसेशन पैकेज इस तरीके से डिजाइन करना होता है ताकि वो उनको अट्रैक्ट कर सके एम्प्लॉइज को, और सिर्फ अट्रैक्ट ही नहीं, जब वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ले तो फिर वो उनको रिटेन करके रख सके. Because when people come and they join the organization, you have spent a considerable amount of resources on enhancing the skills of that employees, right? और उसके बाद अगर वो छोड़ के जाते हैं तो it is a major loss to the employer. Next, it motivates the employees. Obviously, if you have good compensation package, your salary is good, you will be happy and you will feel motivated to work harder for the organization, right? Next point. It leads to good industrial relation. What is industrial relation? क्या होता है industrial relation? Very good. Where did you study this? Where did you study this? Which subject? Very good. Rest of you, what is industrial relation? क्या सोच सकते हैं आप industrial relation के बारे में? बताइए. Ma'am, the relation between management and the worker in the industry. इसको थोड़ा सा और रिफाइन करो. अभिजीत gave me the answer and he was right. You are also right, but उसको थोड़ा रिफाइन करो, कुछ ऐड करो उसमें. Industrial relation is the relation
which arises out of employment. ये हमेशा आपको मेंशन करना होगा कि कैसे रिलेशन को हम इंडस्ट्रियल रिलेशन में मानते हैं, वैसे रिलेशन को जो एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से डेवलप किया है. So that relationship which exists because of employment between the employer and employee is known as industrial relation. ठीक है, ये वाजिब सी बात है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयर हैं उनके और जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके, इन दोनों के बीच में रिलेशन हेल्दी होगा, हैप्पी होगा, पीस एंड हार्मनी होगी, तभी वहां का वर्क प्लेस हैप्पी होगा, राइट? और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट बहुत ज्यादा होता है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, उस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी धीरे धीरे फिर कम होने लगती है. इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करके एक पूरा डिपार्टमेंट ही होता है एचआर का, जो ये मेक श्योर करती है कि किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ने देने से पहले ही उस चीज को वहां पे स्टॉप कर दिया जाए, क्योंकि कई बार कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ जाता है कि दिस लीड्स टू स्ट्राइक. कंपनी बंद हो जाती है, मजदूर हड़ताल कर देते हैं, सुना है, या फिर लॉकआउट्स, एम्प्लॉयर उसमें ऑर्गेनाइजेशन में ताला लगा देते हैं. दिस इज कॉल्ड लॉकआउट्स. सो लॉकआउट स्ट्राइक, अगर ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो ये मुश्किल होगा प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर पाना. और कॉम्पेंसेशन पैकेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस को मेंटेन करके रखने के लिए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट लीड्स टू गुड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन. ऑब्वियसली अगर ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पेंसेशन पैकेज अच्छा होगा तो एम्प्लॉय ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे, राइट? नाउ नेक्स्ट you write down objectives of compensation management. Ma'am, what was the last one? It leads to Good higher employee satisfaction. Okay. Right. Now you write down. Can you see the board? yes, ma'am. Objectives of compensation management. Point number 1, external equity. Point number 2, internal equity. Point number 3, cost control. मैम 6 क्या लिखी है? To obtain, maintain and retain employees. Okay, still writing. Still writing. No, ma'am.
Written? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, what that is retained employee, na? Retained employees. RETAIN. Retained. I will explain these points in details. You just write down. Written, everyone? Yes, ma'am. What was the first point? External External equity. equity. External equity. Equity से क्या समझ रहे हैं? Equal. Ownership. Equal. एक्सटर्नल इक्विटी का मतलब होता है बाहर के तरीके से इक्वल। क्या मतलब हुआ इसका? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब सैलरी पैकेज बनती है तो फॉर सिमिलर पोस्ट आप कंपटीशन रन कर रहे हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन यू आर ऑपरेटिंग इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट। यस, यू आर ऑपरेटिंग इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट व्हिच मींस कि योर कॉम्पिटिटर्स आर आल्सो वर्किंग साइड बाय साइड। यस, सो व्हाट हैपेंस कि आप अपना कॉम्पेंसेशन पैकेज अपने मन से डिजाइन नहीं कर सकते। देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट बिफोर डिजाइनिंग द कॉम्पेंसेशन पैकेज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल इक्विटी का मतलब होता है कि फॉर द सिमिलर टाइप्स ऑफ पोस्ट्स योर सैलरी should be at par with what the other companies or what the other organizations are paying, right? Say for example, एक पोस्ट होता है आईटी कंपनीज में सिस्टम इंजीनियर। जनरली इस पोस्ट पे आईटी कंपनीज कैंपस सिलेक्शन में लेके जाती है। देयर आर 3 आईटी कंपनीज, से टीसीएस, टीटीएस एंड विप्रो। एक स्टैंडर्ड सिस्टम इंजीनियर की सैलरी से फॉर एग्जांपल मार्केट में 30,000 है, जस्ट फॉर एग्जांपल 30,000। सीटीएस अगर 40,000 देती है और विप्रो अगर 20,000 देती है, इसका क्या क्या डायमेंशन से आप इस चीज को पढ़ सकते हैं? बताइए, क्या क्या सोच सकते हैं इसके बारे में? सीटीएस में ज्यादा खुश रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा। अच्छा, और विप्रो में satisfied नहीं रहेगा। ऑनलाइन पीपल, आप लोग बताइए। अभिजीत ने बोला कि सीटीएस में ज्यादा एम्प्लॉइज रिटेन करेंगे, दे विल बी हैप्पियर, एंड विप्रो में दे विल नॉट बी हैप्पी, दे विल नॉट बी रिटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। Ma'am, depend on the location is also the most factor ना। बोलो, कौन बोल रहा है? आशुतोष। नो मैम, अभिषेक मैम, लोकेशन भी तो डिपेंड करता है क्योंकि कौन से एरिया में उसका ब्रांच ऑफिस है और कितना उसके मिनिमम वेज के लिए रिक्वायर्ड है। See, I am giving you this example in the external equity point. External equity समझा रहे हैं। External equity पहले समझा दिए। External equity का क्या मतलब होता है कि for similar types of post, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में आपकी जो सैलरी है वो लगभग बराबर होनी चाहिए, तभी तो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करेंगे। पहली बात, अगर टीसीएस का ये स्टैंडर्ड, अगर इस जॉब के लिए ये स्टैंडर्ड रेट है 30,000 है सैलरी, पहले आप ये समझिए कि कैसे पता चलता है कि किसी सैलरी का सैलरी, किसी पोस्ट का सैलरी कितना होना चाहिए? No, there is a process in HR which is known as job evaluation.
job analysis. No, job evaluation and analysis are two different things. इसको कंफ्यूज नहीं करना. Job evaluation job analysis के बाद फॉलो करता है. Both are completely different things. When you study HR, हर वर्ड का एक मतलब होता है. In favor of classes, in favor of masses, इन दोनों का बिल्कुल मतलब ही बदल जाता है. So don't use words interchangeably. Job analysis is different thing. Job evaluation is different thing. जॉब एनालिसिस जो आपने बोला उसका मतलब होता है कि किसी भी जॉब के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको कहते हैं जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस में आता है जॉब का डिस्क्रिप्शन, जॉब का स्पेसिफिकेशन. आपने देखा है कोई कंपनी रिक्रूट करने आती है तो वो अपना जॉब का डिस्क्रिप्शन भेजती है पहले, जेडी जिसको कहते हैं आप लोग शॉर्ट में. जॉब का डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है? यस मैम. जॉब के डिस्क्रिप्शन का मतलब वो जॉब एनालिसिस होती है कि जॉब एनालिसिस किया गया है, इसलिए बताया जा रहा है कि जॉब में क्या क्या चाहिए. उस जॉब में बताया जाता है कि जॉब की टाइटल क्या है, उसमें बताया जाता है कि जॉब का लोकेशन क्या है, उसमें ये बताया जाएगा कि आपके जॉब की सैलरी क्या है. अगर उसमें किसी तरीके का सेफ्टी हजार्ड इन्वॉल्व है तब उसमें ये लिख करके आएगा कि इसमें ये सेफ्टी हजार्ड इन्वॉल्व है. जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में बहुत सारा जॉब होता है जिसमें कि सेफ्टी फैक्टर्स इंक्लूडेड होता है, तो वो है तो वो बताया जाएगा. किसी और लोकेशन पे जॉब है तो उसके बारे में बताया जाएगा. यानी जॉब से रिलेटेड जितना डिस्क्रिप्शन होगा वो जॉब डिस्क्रिप्शन में बताया जाएगा. जॉब एनालिसिस के अंदर जॉब का स्पेसिफिकेशन भी आता है. स्पेसिफिकेशन मतलब आपसे किसी उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या स्किल्स का रिक्वायरमेंट है वो आता है जॉब स्पेसिफिकेशन में. और जैसे कि आपकी डिग्री, आपका एलिजिबिलिटी बीकॉम चाहिए उसमें या मिनिमम एमकॉम ही चाहिए. कोई एक ट्रेनिंग का अगर कोर्स चाहिए होगा जैसे आईटी वगैरह में आप देखे हैं कि पाइथन का नॉलेज होना ही चाहिए, C++ आना ही चाहिए, जावा आना ही चाहिए. एचआर की पोस्ट आएगी तो उसमें फिर देखेगा शुड हैव वर्कड इन रिक्रूटमेंट फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स, शुड हैव हैड अ टीचिंग एक्सपीरियंस इन 2 इयर्स. ठीक है, तो वैसा होता है, उसको कहते हैं जॉब एनालिसिस. ये जो आपको बताया जा रहा है ये है जॉब डिस्क्रिप्शन, सॉरी जॉब इवैल्यूएशन. जॉब इवैल्यूएशन का मतलब होता है टू फाइंड द टोटल वर्थ ऑफ जॉब. किसी भी जॉब का वर्थ कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, ये हम जॉब इवैल्यूएशन से डिटरमिन करते हैं. आप ये बताइए, इज एवरी जॉब इक्वली इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन? क्या हर जॉब का वैल्यू सेम ही है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? नहीं है ना. स्वीपर भी काम करता है ऑर्गेनाइजेशन का, क्या उसकी प्रोडक्टिविटी उतना ही कंट्रीब्यूट करती है ऑर्गेनाइजेशन की जितना एक मैनेजर की करती होगी? No ma'am. जॉब का इवैल्यूएशन करना जरूरी होता है टू डिटरमिन कि उस जॉब से रिलेटेड वहां की सैलरी कितनी होनी चाहिए. और इसका मेथड्स होता है बहुत सारा. क्वांटिटेटिव मेथड्स होता है, क्वालिटेटिव मेथड्स होता है, इसमें ग्रेडिंग आती है, पॉइंट रैंकिंग, बहुत सारा होता है. यू डोंट हैव टू गो इनटू दैट मच डिटेल्स. आपने जॉब एनालिसिस को इसके साथ यूज किया, दैट इज व्हाई आई क्लियर्ड व्हाट इज जॉब एनालिसिस. तो किसी भी पोस्ट के बारे में उसकी सैलरी कैसे डिटरमिन होती है ये हम जॉब इवैल्यूएशन से फाइंड आउट करते हैं. Now, say for example, TCS by job evaluation this is found कि 30,000 इसकी appropriate salary है एक सिस्टम इंजीनियर को देने के लिए. CTS 40 नहीं दे सकता है, वो 19-20 कर सकता है, पर अगर इतना सैलरी का डिस्क्रिपेंसी होगी तो उसको बहुत हेवी कॉस्ट इनकर होगा ऑर्गेनाइजेशन को. ये सिर्फ एक बंदे की बात नहीं है, देयर आर सो मेनी पीपल. और जब आप उन सबका बजट कैलकुलेट करते हैं तो ये करोड़ में डिफरेंस आता है. इसीलिए यहाँ पे बस 10,000 का छोटा सा फिगर देख के आप ये मत सोचिए कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. इट इज. सैलरी का डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. इसीलिए अभी के टाइम पे और अभी के टाइम पे कोई ऑर्गेनाइजेशन सैलरी नहीं बढ़ा सकती है बहुत ज्यादा,
पर वो बेनिफिट्स बढ़ा करके अपने एम्प्लॉइज को रिटेन करने की कोशिश करती है। ठीक है, बेनिफिट्स में नेक्स्ट क्लास से सैलरी स्ट्रक्चर शुरू करेंगे, वहां पे बेनिफिट्स बढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। और ये विप्रो 20,000 अगर देगी तो क्या होगा? इज दिस सैलरी एट पार विद व्हाट इज देयर इन द मार्केट? नहीं है ना? So people will be unwilling to join this organization. It is so simple. लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने में they will be reluctant. एक्सटर्नल इक्विटी समझ में आया कि बाहर मार्केट के सैलरी से जो एक ही टाइप के पोस्ट के लिए लोग पैसा दे रहे हैं, आपकी कंपनी का कॉम्पेंसेशन पैकेज उसके जैसा ही होना चाहिए। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? इंटरनल इक्विटी। इंटरनल इक्विटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्विटी मेंटेन होनी चाहिए फॉर सुटेबल जॉब्स, सुटेबल सैलरी शुड बी पेड। ऐसा नहीं कि असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी मैनेजर से ज्यादा डिजाइन करो। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट कंट्रोल। ऑब्वियसली कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेजर कॉस्ट कंट्रोल का फैक्टर होता है, इसीलिए इसको बहुत लॉजिकली डिजाइन करना ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी के लिए बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, motivation. This is but natural that if the organization pays you well, you will be thoroughly motivated to work towards the efficiency of, to work towards higher productivity. Your higher productivity will yield more to the organization. इसीलिए एम्प्लॉइज को मोटिवेटेड रखने के लिए अच्छा सैलरी, अच्छा कॉम्पेंसेशन बेनिफिट का होना जरूरी होता है। नेक्स्ट, satisfaction is the same thing. You will be more satisfied if your salary is being paid nicely. Next, to obtain, maintain and retain. To obtain मतलब जब आप फ्रेश हायर कर रहे हैं, फ्रेश हायरिंग के लिए इम्पोर्टेंट है ना कि आपका पैकेज अट्रैक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट, टू मेंटेन, उनको मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करने में बहुत कुछ आता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वगैरह। These are all the costs which are borne by the organization. And to retain, वही लेबर टर्नओवर पढ़ाए अभी कि उनको रिटेन करके रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो लंबे समय तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहे, उसके लिए कॉम्पेंसेशन पैकेज का वेल स्ट्रक्चर्ड होना बहुत जरूरी होता है। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद सैलरी स्ट्रक्चर। आप अभी एक फिगर बना लीजिए, एक चार्ट है, you draw this chart and in the next class I will explain you this chart again in detail. Components of salary. हाँ, मैम लास्ट वाला क्या है? base pay, allowances, benefits and incentives, rewards and recognition. Rewards and recognition. Write down.
हैव यू रिटन? यस मैम। आप पेरोल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, इसीलिए पेरोल मैनेजमेंट इज बेसिकली द प्रोसेसिंग ऑफ सैलरी। इसीलिए सैलरी का कंपोनेंट ठीक तरीके से जानना बहुत जरूरी है कि सैलरी का कंपोनेंट क्या क्या होता है और इसको सैलरी में ऐड करने का क्या पर्पस होता है। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल deal with the explanation of this chart. Okay, thank you.